Today in this video I'm going to share parents-teacher sentences. Most of the time it happens when parents have to go to school for parents-teacher meeting. They have to communicate with teacher and parents have to speak English. So let's see what are these sentences. Number one is today is parents-teacher meeting. आज वालिदैन और उस्ताद की मीटिंग है. Where is room number 3? कमरा नंबर 3 कहाँ है? जब पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाते हैं they have to allocate room and they have to find out the room. So we can say where is room number 3, where is room number 2 or where is classroom 2, classroom 3. I want to meet Ahmed's teacher. मैं अहमद के उस्ताद से मिलना चाहती हूँ. और we can say I want to meet Ahmed's class teacher. मैं अहमद की क्लास टीचर से मिलना चाहती हूँ. My meeting time is 10 a.m. मेरा मीटिंग का वक्त 10 बजे का है. I am father, mother और guardian of अहमद. मैं अहमद की वालदा हूँ या वालिद हूँ या सरपरस्त हूँ. तो जब हम जाते हैं तो we introduce ourselves कि I am mother of child or that kid. How is अहमद in study? अहमद क्लास में कैसा पढ़ता है या अहमद क्लास स्टडी में कैसा है. How's behavior with his classmates? उसका अपने क्लास के साथियों के साथ behavior, रवैया कैसा है. He is very good with his classmates. वो अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा है. और अगर लड़की है तो she is very good with her classmates. वो अपनी क्लास के साथियों के साथ अच्छी है. She is very friendly और cooperative. और we can say he is very friendly और cooperative. वो बहुत ताउन करता है या करती है. उसका मिजाज बहुत दोस्ताना है अपने साथियों के साथ. He never teases anyone. वो कभी किसी को तंग नहीं करता. या she never teases anyone. वो कभी किसी को तंग नहीं करती. He is very good in maths, but he feels problem in English. वो रियाजी में अच्छा है या वो रियाजी में अच्छी है लेकिन उसे इंग्लिश में मसला होता है. Although he is very active, but nowadays he is very sluggish in class. या he is very lazy in class. अगरचा वो क्लास में बहुत एक्टिव है, बहुत वो सरगर्म रहता है लेकिन आजकल वो क्लास में बहुत सुस्त है. He always shares his things with others. वो हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करता है. और he is not used to sharing at all. और वो चीज़ें शेयर करने का आदी नहीं है. Although he does not talk. वैसे तो वो बात नहीं करता. But nowadays he is talking a lot in the class. लेकिन आजकल वो क्लास में बहुत बात कर रहा है. और we can say he is talkative. वैसे तो वो बातूनी है. But nowadays he is not talking. लेकिन आजकल वो बातचीत नहीं कर रहा. Most of the time his homework is incomplete. ज़्यादातर उसका होमवर्क इनकम्प्लीट होता है. His homework is always wrong. उसका होमवर्क हमेशा गलत होता है. और we can say that his homework is not neat and clean. इसका काम साफ नहीं होता. He does not write diary properly. वो डायरी ठीक से नहीं लिखता या होमवर्क ठीक से जॉट डाउन नहीं करता. अहमद is not regular nowadays. आजकल अहमद रोज़ाना स्कूल नहीं आ रहे. His work is also incomplete. और उनका काम भी नामुकम्मल है. The result of first term was good. पहले टर्म का रिजल्ट अच्छा था. The performance of second term was satisfactory only. लेकिन दूसरे टर्म की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो सिर्फ और सिर्फ तसल्ली बख्श है. यानी कि सेकेंड टर्म की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. Nowadays he does not focus on work. आजकल वो काम पर तवज्जो नहीं देता है. He has improved a lot. उसने पढ़ाई में बहुत इम्प्रूव किया है. या he has improved a lot in study. वो पढ़ाई में इम्प्रूव किया है. और we can say that he is not improving in study. वो इम्प्रूव नहीं कर रहा. Next is he is very shy. He doesn't participate in class. वो बहुत शर्मीला है. वो क्लास में हिस्सा नहीं लेता. He never has his lunch. उसके पास कभी उसका लंच नहीं होता. He always eats others' lunch. वो हमेशा दूसरों का लंच खाता है. His uniforms and haircut never be proper. उसका यूनिफॉर्म और बाल कभी ठीक नहीं होते. He does not read a book in library period. वो लाइब्रेरी पीरियड में कभी किताब नहीं पढ़ता. अहमद always feels drowsy in the class. वो हमेशा क्लास में सुस्त रहता है या उसे हमेशा क्लास में नींद आती है या वो हमेशा क्लास में सोता रहता है. Teachers misbehave with children. उस्ताज़ा बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते हैं या टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट विद चिल्ड्रन. उस्ताज़ा बच्चों के साथ बहुत सख्त हैं. टीचर्स डोंट चेक कॉपीज़ प्रॉपरली. उस्ताज़ा कॉपियाँ ठीक तरह से चेक नहीं करते. देयर आर सो मैनी एरर्स इन चेकिंग. चेकिंग में बहुत गलतियाँ होती हैं.
The last date of summer vacation work is 30 July. मौसम गर्मा के तातीलात के काम की आखिरी तारीख 30 जुलाई है. And assignments marks will be included in midterm exams. और assignment के नंबर midterm के exams में शामिल किए जाएंगे. So these are some sentences when teachers and parents meet and they have to discuss about children. So I think they usually use these type of sentences. I hope this video is helpful for the parents so that if the parents go to the school they can speak in English. आजकल इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ जॉबफुल पर्सनस के लिए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट दे कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन इन स्टडीज़ दे कैन कम्युनिकेट विद टीचर्स प्रॉपरली सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू अगर पेरेंट्स या टीचर्स की कम्युनिकेशन के हवाले से कोई और सेंटेंस है सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स कीप स्टेइंग विद अस कीप लर्निंग इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स thanks for watching.